चलिए टेक आउट द होमवर्क्स। होमवर्क से ले लो चलो कोई चेक द होमवर्क 24 and 25. 24 चेक करो। बैंक अकाउंट डेबिट 24 चेक करो। 24 में आई थिंक देयर वाज जस्ट one entry. One or two? One. वो कर सकते हो बैंक में एप्लीकेशन और एप्लीकेशन में डेबिट। Otherwise, one single entry is also fine. If two dates are not given, it is single date entry. चलेगा। चलो भाई चेक करो बराबर। Guys, bank account debit 1 crore 5 lakhs. First one issue of debentures debit 10 lakhs. बराबर है? 2 8% debentures it is 1 crore. 2 premium on redemption of debentures 10 lakhs. 2 debenture premium that is 5 lakhs. बराबर है? 1 crore 5 lakhs. 1 to 5 lakh 10 lakh. 1 crore 10 lakh and 5 lakh. Got it? 25th bank to debenture application 4 crores. Then debenture application to debenture 4 crores. Then debenture allotment to debenture premium 7 crore 6 crore and 1 crore. And bank to debenture allotment 7 crore. बराबर है? मिला? हेलो चलिए let's wind up with debentures today. देखो see look at question 10. Now question 10 is a very simple sum, but many students question 10 है बड़ा ही simple, but काफी students गड़बड़ करते हैं. Over the years I have seen that. Since the time I used to study ना कभी से देखा है. कंसेप्ट बड़ा सिंपल है लेकिन पता नहीं बहुत लोग का गड़बड़ होता है. सुनो अभी HDC Limited issues 1 lakh 12% debentures of 100 each at 94 rupees. तो इश्यू कैसे हो रहा है? बाहर प्रीमियम और डिस्काउंट. कितना डिस्काउंट है? 6 रुपीज का डिस्काउंट है पर डिबेंचर. ठीक है ना? तो 1 लाख डिबेंचर का इश्यू है. बराबर है? तो कितना हुआ टोटल डिस्काउंट? 6 लाख का हुआ ऑन 1st Jan 2017. तो इश्यू कब हो रहा है? तो इट इज ऑन 1st Jan 2017. अंडर द टर्म्स ऑफ द इश्यू the debentures are redeemable at the end of 5 years from the date of issue.
तो 5 साल बाद रिडीम है। व्हाट यू मीन बाय रिडेम्पशन? रिडेम्पशन का मतलब क्या है? पे ऑफ। Pay off. It's a loan, so you need to pay it off, right? So the company has taken a loan on 1st Jan 2017. So on 1st Jan 2022, yeah, 31st December 2021, it is going to repay the entire amount of debentures. Is this part clear? So basically company ये loan कितने टाइम के लिए रेज करने वाला है? 5 साल, ठीक है ना? अभी पढ़ो. From the date of calculate the amount of discount to be written off in each of those 5 years. Now I told you, if you remember, discount on issue of shares and loss on issue of shares. Discount on issue of debentures and loss on issue of debentures. What type of expense? Deferred revenue expense. What is a deferred revenue expense? Do you show it directly under your P&L in the same way? No. You show it like an asset, and then you write it off over the number of years, just like advertisement suspense, right? We have done that in 12th standard. So advertisement suspense कैसे asset में दिखा के थोड़ा थोड़ा write off करना है, वैसे ही discount भी आपको asset side दिखा के थोड़ा थोड़ा write off करना होता है, ठीक है ना? अभी ये discount जो है ये कौन से रेशियो में write off होता है, कैसे write off होता है? तो it is written off in the ratio of debenture amount usage. It is written off in the ratio of debenture amount usage, which is fair enough, because over here ये आपने डिबेंचर कितने इश्यू किए थे? 1 लाख डिबेंचर 100 रुपए के थे, तो 1 करोड़ का फंड रेस किया आपने अप्रोक्स, डिस्काउंट काट के 94 लाख, बट अदरवाइज 1 करोड़ फेस वैल्यू. तो ये 1 करोड़ आपने कितने साल वापरा? 5 साल. तो ईयर 1 में भी 1 करोड़, ईयर 2 में भी 1 करोड़, ईयर 3 में भी 1 करोड़, ईयर 4 में भी 1 करोड़ और ईयर 5 में भी 1 करोड़ ही वापरा है. इक्वल अमाउंट यूज हुआ है हर साल. तो ये जो डिस्काउंट है ना 6 लाख का, दिस विल बी ऑल्सो रिटन ऑफ इन विच रेशियो? इक्वल रेशियो ओवर द 5 ईयर पीरियड. क्योंकि जितना आपने पैसा इस्तेमाल किया उतना आपने प्रोडक्शन किया होगा, प्लांट वांट में इन्वेस्ट करके उतना प्रोडक्शन हुआ तो उतना रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा. तो जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ एक्सपेंस भी उतना ही दिखा हो, तो मैचिंग कंसेप्ट बराबर से फॉलो हो रहा है आपका. तो डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस, 6 लाख का एक्सपेंस है. कैसे राइट ऑफ करोगे? इक्वली राइट ऑफ करोगे, क्योंकि हर साल पैसा भी कितना इस्तेमाल किया आपने, इक्वली यूज किया. तो 1.2 लाख रुपीस का डिस्काउंट आप हर साल राइट ऑफ करोगे. ये अगर मैं आपको डेटा ना भी देता तो भी आप बोल देते कि 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 तो 1.2 लाख ही होता है. इसमें क्या इतना सोचने का? तो ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि यहाँ पर आप डिबेंचर एक साथ पूरे के पूरे चुका है, तो पूरा 1 करोड़ आप 5 साल तक यूज कर, तो रेशियो इज इक्वल. दिस इज क्वाइट सिंपल. दिस यू अंडरस्टूड और नो? तो हर साल कितने से राइट ऑफ होगा डिस्काउंट आपका? 1.2 लाख इन दिस. But sometimes what happens, company may redeem the debenture in parts. Company may redeem the debenture in parts. मतलब कंपनी बोलेगी कि हर साल हम लोग थोड़ा थोड़ा डिबेंचर रिडीम करते हैं, लोन ही है ना, चुकाना ही है, तो एक साल 5 साल यूज करके चुकाने से बेहतर है हम लोग जितना थोड़ा थोड़ा करके रीपे करें तो बर्डन भी कम होगा और हमारा इंटरेस्ट बर्डन भी थोड़ा कम होते जाएगा. ये सब टर्म्स ऑफ इश्यू में दिया रहता है, क्लॉज में दिया रहता है कि कैसे रिडेम्पशन होने वाला है. एंड में होने वाला है, बीच में होने वाला है थोड़ा, या बीच थोड़ा एंड में, या हर साल थोड़ा थोड़ा होगा, या 2-3 साल के गैप में होगा, कैसे होगा वो सब दिया रहता है. तो सपोज यही एग्जांपल में इमेजिन करो कि ये रिडेम्पशन इक्वल, ये रिडेम्पशन एंड में नहीं हो रहा है, ये रिडेम्पशन हो रहा है इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ओवर 5 years. रिडेम्पशन हो रहा है इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर 5 years. सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? दे आर ट्राइंग टू से, सॉरी, कंपनी ने भले ही 1 करोड़ का डिबेंचर रेज किया है, बट उसमें से हर साल 20 लाख रुपए का डिबेंचर वो क्या करेगा? चुका देगा. 20 लाख डिबेंचर का पैसा वो क्या करेगा? चुका देगा. अब आप सब डिबेंचर होल्डर हो, मैं कंपनी में क्लॉज डाल दिया और क्लॉज में लिखा हुआ है कि हर साल कंपनी का टारगेट है कितना चुकाना है? 20 लाख. अभी आप में से कुछ होल्डर्स होंगे जो बोलेंगे कि हमें पैसा दे दो, 1 साल हो गया, हमें रिडीम करने हमारे डिबेंचर, तो कंपनी आपको देते जाएगा. उसको टारगेट अचीव करना है. कितना टारगेट अचीव करना है?
20 लाख रुपीस के डिवेंचर उसको रिडीम, बेसिकली 20,000 डिवेंचर ऑफ 100 each, उतने का पैसा वो चुकाएगा कैसे भी करके। अभी जो डिवेंचर सामने से होल्डर्स ने रिक्वेस्ट डाली हुई है उनको पैसे मिल जाएंगे, और समझो चुका के 15 लाख के डिवेंचर चुका पाया कंपनी और 5 लाख के बच गए साल के एंड में, और कोई डिवेंचर होल्डर सामने से आ ही नहीं रहा है कि हमें पैसे वापस चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कंपनी उसमें लॉटरी सिस्टम निकालता है, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स। तो एरा गेरा नथु गेरा जिसका नाम आ गया 5 लाख के डिवेंचर है, वही तेरा नाम आ गया, तेरे को पैसे वापस, अरे नहीं चाहिए मिल जाएंगे भैया, क्लॉज में तेरे को 1 साल के एंड में 5 लाख, मतलब जितने भी डिवेंचर है, किसी के पास 2,000 होंगे, 3,000 होंगे, 500 होंगे, 1,000 होंगे, राउंड फिगर कितना होना चाहिए टोटल मिला के 5,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 each, 5 लाख वो चुकाना ही, मतलब टोटल 20 लाख का पैसा चुकाना है। इज दिस क्लियर? ज्यादा आ गया तो वो भी प्रोरेटा के हिसाब से करते हैं, कभी रैंडम लॉट्स के हिसाब से करते हैं। तो बोलने का मतलब हर साल कंपनी का टारगेट है क्या? पे ऑफ करना। कितना? 20 lakhs पे ऑफ करना। तो इज दैट सिचुएशन और दिस सिचुएशन सेम? नो। इन द सेकंड सिनेरियो व्हिच वी आर लुकिंग एट, what is the amount of debenture money usage every year? Will it remain same? In the first year the company will be using 1 crore, obviously full year 1 crore वापरेगा, एंड में क्या करेगा 20 लाख चुका है, तो नेक्स्ट ईयर वो 80 लाख यूज करेगा, उसका नेक्स्ट ईयर 60 लाख, उसका नेक्स्ट ईयर 40 लाख, उसका नेक्स्ट ईयर 20 लाख, तो जीरो हो जाएगा। सॉरी, तो बोलने का मतलब every year the company will redeem the debentures in parts, 20 lakhs per year. So what can we conclude? Since in the first year it has used the amount of 1 crore, corresponding production capacity और जो भी परचेज है वो 1 करोड़ जितना किया है उसने, रेवेन्यू भी उतना ही जनरेट किया है, इनकम भी उतनी हुई है, तो खर्चा क्या इक्वली डिवाइड करके दिखाना चाहिए कि इनिशियल ईयर में ज्यादा और लेटर ईयर में कम? वही लॉजिक बोलता है मैचिंग कंसेप्ट, क्योंकि अगर आपका इनिशियल ईयर में पैसा यूज ज्यादा हुआ है तो इनकम भी ज्यादा हुई है, तो खर्चा भी ज्यादा दिखाओ, और लेटर ईयर्स में अगर आपके रेवेन्यू कम हो रहा है, इनकम कम हो रही है, तो खर्चा भी कम कर देते। तो यहाँ पर आपका ये सपोज 6 लाख रुपए का डिस्काउंट है, तो क्या इक्वल रेशियो में राइट ऑफ किया जाएगा? नहीं, इट विल बी इन विच रेशियो? दिस रेशियो। व्हाट इज दिस रेशियो? यू नो, तो फर्स्ट ईयर में आई वोंट राइट ऑफ 1.2 lakhs, आई राइट ऑफ 6 lakh डिवाइडेड बाय व्हाट, 15/5, which will be I think 2 lakhs. In the second year, I'll be writing off 6 lakh divided by 15 into 4. Third year, I'll be writing off 6 lakh upon 15 into 3. Fourth year and fifth year, total 6 लाख ही हो रहा है, टोटल 6 लाख ही हो रहा है, लेकिन राइट ऑफ का रेशियो क्या बन गया? 5, 4, 3 to 1। ऐसा क्यों हुआ? इनिशियल ईयर में पैसा ज्यादा यूज हुआ, लेटर ईयर में कम, इनिशियल में रेवेन्यू भी, इनकम भी, प्रॉफिट भी, तो खर्चा भी, और लेटर ईयर्स में सब कुछ कम, तो प्रॉफिट भी कम और इनकम भी कम और एक्सपेंस भी कम। तो ये मैचिंग कंसेप्ट होगा, बराबर आप मैच करके प्रॉफिट कंपेरेबल बना सकते हो। सही बात है ना? ये कंसेप्ट क्या दिमाग में सबके? क्या एक और एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर कंपनी ने 1 करोड़ के डिबेंचर इश्यू किया, ठीक है, और अभी रिडेम्पशन का क्लॉज क्या है? 5 साल के एंड में पूरे रिडीम नहीं करने वाला है, हर साल इक्वली भी नहीं करने वाला है, तीसरे साल के एंड में आधे करेगा और 5वें साल के एंड में रेस्ट हाफ करेगा, थर्ड ईयर के एंड में आधा रिडेम्पशन करेगा और 5वें साल के एंड में बाकी हाफ करेगा। तो बताओ मुझे कैसा यूजेज कैसा होगा? फर्स्ट ईयर 1 करोड़, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 1 crore। हाँ, कब रिडीम कर रहा है? सॉरी, थर्ड ईयर के एंड में कितने कर रहा है? आधे। तो पहले 3 साल तो 1 करोड़ ही वापरेगा ना, तीसरे साल के एंड में कितना रिडीम कर देगा? 50 लाख। तो फोर्थ ईयर में 50 और फिफ्थ ईयर में भी, ठीक है। अब रेशियो क्या बना? 1:1:1:1:0.5:0.5. I round it up, I get 2:2:2:1:1. करेक्ट? बराबर है? बराबर। So 2:2:2:1:1. So that is, I think, 8. So what will be my amount of discount written off in the first year? 6 lakh divided by what? 8 into
2 1.5 इधर भी और इधर 75,000. Is this clear? ऐसे कभी कभी 10 साल का टर्म होता है, कभी 15 साल का. आपको समझ में इतने बड़े टर्म्स नहीं आते, 5 साल के टर्म्स आएंगे, बट लॉजिक ये है. ये कंसेप्ट क्या दिमाग में सब. रेशियो कैसे ढूंढना है? कंसेप्ट क्या है कि आपका डिस्काउंट हो, चाहे डिस्काउंट हो या चाहे लॉस ऑन इश्यू हो, इवन द लॉस ऑन इश्यू. व्हाट इज लॉस ऑन इश्यू? वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वाला, फ्यूचर प्रीमियम वाला जो अभी से लॉस दिखा रहे, वो लॉस ऑन इश्यू बोलो कि डिस्काउंट ऑन इश्यू बोलो. बोथ ऑफ देम आर रिटन ऑफ इन विच रेशियो? डिबेंचर अमाउंट यूजेज रेशियो. डिबेंचर अमाउंट जिस ईयर में ज्यादा अमाउंट यूज किया उस ईयर में ज्यादा एक्सपेंस राइट होगा, जिस ईयर में कम यूज किया. समझा? चलिए इसी को प्रेजेंट करना है. क्वेश्चन 10 में कैसे करोगे आप? ऐसे करोगे ना, इक्वली करोगे. चलिए टेबल लगाने इसके वर्किंग नोट का, ये वर्किंग नोट का ही समय 5 मार्क का आता है और आ चुका है. तो 2-3 साल पहले आया था. एक टेबल बना रहा है. These are dates. पहले हम वर्किंग नोट में एंट्री करेंगे तो आपको डिस्काउंट का अमाउंट पता चल जाए. बैंक डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर टू 12% डिबेंचर अकाउंट. दिस इज 1 crore 94 lakhs and 6 lakhs. 1 crore 94 lakhs 6 lakhs. Okay. This is date, amount of debenture usage. This is ratio and amount of discount written off. Amount of discount written off. डेट लिखो या ईयर लिखो. डेट और ईयर. डिबेंचर अमाउंट यूजेज. डिबेंचर अमाउंट यूजेज. कंसेप्ट है ये, वीडियो जो जबरदस्त है. ईयर लिखो या डेट लिखो. अमाउंट ऑफ डिबेंचर यूजेज, रेशियो एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिटर्न ऑफ. ठीक है. सी ईयर्स क्या दिया हुआ है आपका? जैन 2017 में आपका इश्यू हुआ. 2017, 18, 19, 20 एंड 21. 21 के एंड में पूरे ही रिडीम होने वाले हैं. Is that right? Correct? What is the debenture amount usage in the first year? यहाँ पे तो आई थिंक 5 साल के एंड में रिडीम होने वाला है. तो हर साल कितना होने वाला है? 1 crore. 1 crore बराबर है. अभी मैं CR लिख रहा हूँ, आप जीरोस लगा देना बाद में. मतलब सम कर रहे हो एक्चुअली तभी जीरोस लगा. कंजूसी मत करना. 110 crores में जाएंगे तब करोड़ और लाख लिखा है. रेशियो क्या होगा यहाँ पे? 1 1 1 1 1. एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिटर्न ऑफ. यहाँ से आपको पता है डिस्काउंट कितना है? 6 लाख है. तो ईयर 1 का डिस्काउंट होगा 6 लाख इंटू 1/5 विच इज 1,20,000. अगेन से 6 lakhs इंटू 1/5 1,20,000.
20,000. अगेन से 6 lakhs into 1/5. क्यों हर साल सेम हो रहा है, समझ आ रहा है कुछ? रेशियो सेम है. क्यों रेशियो क्यों सेम आया? क्योंकि एंड में रिडीम होने वाला है, तो हर साल आप कितना पैसा यूज करने वाले हो, सेम सेम की डिफरेंट? सेम सेम. हर साल सेम अमाउंट यूज करने वाले हो. ठीक है ना? सही बात. सॉरी 5 मार्क टेबल ही बना है. इसका कंसेप्ट आ गया तो चिंदी है, कंसेप्ट नहीं आया तो घूमता रहता है. सॉरी का इक्वल है इधर वाले. ऐसा है. समझ आया? Got it? अभी दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है. क्वेश्चन 11. Question 11. HDC Limited issues 2 lakhs 12% debentures of 10 each at 9.4 for debenture on 1st Jan 2010. Under the terms of the issue, 1/5 of the debentures are annually redeemable by drawings. 1/5 of the debentures are annually redeemable by drawings. What do you understand by drawings? ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स. जो मैंने अभी बताया ना आपको कि कोई डिबेंचर होल्डर को अगर नहीं लेना है अपना डिबेंचर वापस तो भी ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स मतलब लॉटरी सिस्टम. ड्रॉ करेंगे, जिसका नाम आया उसको चिपका देंगे, ये भाई पैसा ले और डिबेंचर वापस दे, तुम्हारे डिबेंचर कैंसिल. ऐसा उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स. उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स. बाकी सबने तो इन्वेस्टमेंट के लिए किया होगा ना, तो लेकिन क्लॉज तो है अग्रीमेंट में कि 1/5 रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स. कंपनी ने पहले ही बोला हुआ है 1/5 रिडीमेबल है बाय ड्रॉइंग्स. वो सोच के आप इन्वेस्ट करो, आपका नाम आया तो आपको देने पड़ेंगे. ऐसा जबरदस्ती ऐसा कुछ करेगा नहीं. वो कंप्यूटर रैंडम एल्गोरिथम में डालेगा, आपका आ गया. ठीक, जैसे आईपीओ कैसे अलॉट होते हैं वैसे बस. इसके अच्छा ऐसे डिवेंचर में इन्वेस्ट करो जहाँ पे ऐसा लॉट्स वाला ऑप्शन ना हो. और आजकल की तारीख में लॉट्स वाले ऑप्शन बहुत कम होते हैं. एक साथ ही रिडेम्पशन होता है. 5 साल 7 साल 6 साल के एंड में ही होता है. ये पहले होता है. Under the terms of issue, 1/5 of the debentures are annually redeemable by drawings. Can you see that? First redemption occurring on 31st December 2010. Calculate the amount of discount to be written off from 2010 to 2014. इसमें क्या सीन है, समझ में आया कुछ? क्या सीन हो रहा है? हर साल सेम अमाउंट यूजेज है? नहीं. हर साल डिबेंचर यूजेज घटता जाएगा. तो बनाते इसका भी टेबल. पहले तो नोट में इसका क्या करो, आप डिस्काउंट कैलकुलेट करो. ये कर लो कितने डिबेंचर है. आई थिंक 2 लाख है 100 वाले, तो मेरे हिसाब से